Good morning student, welcome back to our science class for class 7 chapter number 3rd fiber to fabric. So in this chapter we will study about different kinds of fabric that is available in our surroundings, or we can say we wearing different types of clothes. So different types of cloths have made from different fabric, so that fabric are obtained from plants and animals. So in this chapter we will study about that type of fabrics. Okay, so let's start. Here is in class 6 you have learned about some fibers obtained from plants, and you also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. Okay, animals, and wool is obtained from the fleece, or we can say fleece, that is nothing but it is a hair of sheep or yak. Okay, yak is an animal that yield hair, or we can say that form some different kinds of fabric from yak's hair. Okay, so silk fibers come from cocoon of the silk moth. Silk moth is an insect that form a cocoon and yield a silk fiber. Okay, and do you know which part of the sheep's body yield fibers? अब बताइए, डू यू नो विच पार्ट ऑफ sheep's body yield fibers? Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि different type of fibers are converted into the woolen yarn. Yarn is nothing but it's a thread. Okay, so yarn is a thread that we buy from the market to knit sweater. We can say sweater are made from different woolen yarn. Do you have any idea how silk fiber are made into silk, which is woven into saris? And in this chapter we shall try to find answer of these question. Okay, मतलब यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हम स्वेटर बुनते हैं या फिर जो साड़ी हम वोवन करते हैं, जो साड़ी हमें मिलती है, तो वो सारे साड़ीज़ और जो स्वेटर हैं उनको जो हम जिन फाइबर या फिर जिन फैब्रिक से हम फॉर्म कर रहे हैं, तो वो फैब्रिक जो है कहाँ से आते हैं और उनके जो सोर्सेस हैं वो क्या हैं, इनके बारे में हम इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, like us the hairy skin of the sheep has two type of fiber. अब देखिए जैसे यहाँ पूछा था ना कि आप जो है which part of sheep's body yield fiber, तो जो स्किन हेयरी स्किन है sheep की, उसी से हम जो है वूलन, जो हमारा सिल्क फाइबर, सॉरी जो वूलन फाइबर है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, दैट फॉर्म इट्स फ्लीस. द कोर्स बेयर्ड हेयर फर्स्ट, the coarse beard hairs and the fine soft under hair close to the skin. अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो beard hair हैं and the fine soft under hair close to the skin. The fine hair provide the fiber for making wool, and some breeds of sheep possess only fine under hair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जनरली जो सीप हैं उनमें जो है टू टाइप ऑफ हेयर होते हैं, एक तो बेयर्ड हेयर यानी कि जो हार्ड हेयर होते हैं वो, देन सेकंड जो है वो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं. ठीक है, जो कि क्लोज टू स्किन वहाँ पर अटैच्ड होते हैं इनकी बॉडी में. ठीक है, यानी कि आप ये इस पिक्चर में देखकर समझिए कि ये जो आउटर हेयरिंग है, आउटर हेयरिंग ये कैसे होंगे, बेयर्ड हेयर बहुत ही टाइट जो हेयर होते हैं वो होंगे, है ना, हार्ड हेयर. देन इसके अंदर जो है, जो यहाँ पर इसके अंदर जो अटैच्ड या फिर क्लोज टू स्किन जो होंगे, इसके अंदर इनर लेयर जो होगी हेयर की वो कैसे होगी, सॉफ्ट होगी. ठीक है, तो उसी हेयर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिससे हम जो है क्या बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक हम बनाते हैं. और जो सॉफ्ट अंडर हेयर वाले जो ब्रीड होते हैं उन्हीं से जो है हम, जो सीप होते हैं उनसे हम ये हेयर जो है ऑब्टेन या एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं. अपना फर्स्ट टॉपिक है एनिमल फाइबर्स की. ठीक है, एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क. सो वूल कम फ्रॉम sheep, goat, yak एंड सम अदर एनिमल्स. वूल कहाँ से मिलते हैं हमें, वूल कम्स फ्रॉम sheep, goat, yak एंड
सो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो हमारे वूल है वो जनरली कम्स फ्रॉम sheep, goat, yak and some other animals. Okay, so these wool yielding animals bear hairs on their body. देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो वूल है यील्ड करते हैं, यील्डिंग एनिमल्स जो है क्या है, बहुत सारे हेयर होते हैं इनकी बॉडी में. एंड डू दे नो वाई दिस एनिमल हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर. इसलिए हम यहाँ समझ सकते हैं कि इनकी जो बॉडी में बहुत सारे थिक हेयर्स क्यों होते हैं. ठीक है. एंड हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर. एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4. सो हेयर कीप्स दिस एनिमल वार्म. वूल इज ड्राइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो जनरली जो एयर है इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एयर जो क्या होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है. और यहाँ पर इस पुअर कंडक्टर की जो एक्टिविटी है या फिर उनकी जो कंडक्टिविटी है उसको हम चैप्टर 4 में हम स्टडी करेंगे. ठीक है. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो एयर है उससे जो है हीट जो है जैसे ही इनके बॉडी में आएगा तो ये सारे जो हेयर हैं वो क्या कर लेंगे, उसको कैप्चर कर लेंगे हीट को. और कैप्चर करने के बाद उनकी पूरे बॉडी को वार्म रखेंगे, जिससे जो है इनको जो है ठंडी नहीं लगेगी. तो इसलिए भी एक ये फ़ायदा है कि इनके बॉडी में पूरा स्किन में पूरे हेयर से कवर्ड होते हैं. तो क्यों होते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक जो चेंजेस होते हैं उनसे इन्हें बचाते हैं. ठीक है. तो सेफ़ रखते हैं, इसलिए भी ऐसा होता है. ये है. फिर यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए. एनिमल दैट यील्ड वूल. अब यहाँ हमने बात की जो कि एनिमल्स की हमने बात की जो कि क्या करते हैं, वूल देते हैं. ठीक है. तो सेवरल ब्रीड्स ऑफ सीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री. हाउएवर द फ्लीस ऑफ सीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल. तो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज़ सीप वूल. अब देखिए जो जनरली जो वूल है वो कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, जो सीप हैं, सीप के बॉडी से हम उनके हेयर से जो है हम क्या कर रहे हैं, वूल ऑब्टेन कर रहे हैं. तो इसलिए जो मार्केट में जो वूल अवेलेबल है उसे हम सीप वूल कहेंगे. ठीक है. एंड याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख. जो याक वूल जो है वो जनरली कहाँ पर है, ये याक जो होते हैं एनिमल्स वो कहाँ पाए जाते हैं, वो तिब्बत और लद्दाख जो पहाड़ी एरियाज़ होते हैं हमारे, वहाँ पर ये माउंटेन हिल जो एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़, वहाँ पर ये अवेलेबल होते हैं. और ये याक वूल जनरली वहीं पाए जाते हैं जैसे कि लद्दाख एंड तिब्बत. ठीक है. एंड मोहेयर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गॉट. एक है मोहेयर जो कि अंगोरा गॉट है, वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट करते हैं. देन फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. ये भी कहाँ पर, हिली रीजन में अवेलेबल हैं, हिली रीजन में पाए जाएंगे. ठीक है. तो ये आपको याद रखने चाहिए. याक वूल कहाँ पर मिलते हैं, याक तिब्बत एंड लद्दाख में. देन मोहेयर ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गॉड्स दैट इज़ फाउंड इन हिली रीजन दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर. ओके. देन नेक्स्ट है wool is also obtained from goat hair and the under fur of कश्मीरी goat is soft. अंडर फर जो होते हैं कश्मीरी goat के जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, वहाँ से हम इन्हें ऑब्टेन करते हैं. और इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल. ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पश्मीना शॉल. तो ये जो लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके. सो पश्मीना शॉल इज़ made in Jammu and Kashmir from Kashmiri goat hair. वूल कश्मीरी गोट हेयर्स जो होते हैं वहाँ पर इनसे जो है ये बनाते जाए. ठीक है. तो ये कश्मीरी गोट होंगे और इन्हीं से जो है हमारा वूल प्रिपेयर होगा. ठीक है. ठीक है. तो ये सारे हैं यहाँ पर. और नेक्स्ट क्या बता रहा है, द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज एज अ वूल. एंड लामा एंड अल्पैका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल. देखिए यहाँ पर एक दो और सेकंड हमारे स्पीसीज दिए हैं जैसे लामा एंड अल्पैका, दैट इज़ द एनिमल कैमल, यू कैन से कैमल found in South America that yield wool. Okay, so these some different kinds of sources of wool we have learned. What is it? कश्मीरी गॉट के बारे में हमने पढ़ा. देन याक
है ना, जो कि जनरली कहाँ पर हमारे लद्दाख में मिलते हैं, तिब्बत जो एरियाज है वहाँ पर ये कश्मीरी गोट पाए जाते हैं, वो हमें क्या देंगे, वूल हम उनसे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ डिस्कस किया इनके बारे में। देन नेक्स्ट यहाँ आप देखिए, ये यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स दिए हैं जिनको आप समझ सकते हैं। जो याक है ये तिब्बत एंड लद्दाख में पाए जाते हैं। देन लामा एंड एल्पेका ये हमारे साउथ अमेरिका में फाउंडेड है ना, और इन्हीं से जो है हम वूल एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन कैमल जो है हमारा, ये भी क्या है, इससे भी हम वूल जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, देन सम गॉड्स भी हैं यहाँ पर, है ना, ये जो गॉड्स हैं ये हमारे, इनसे भी हम वूल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये इनके जो है नाम आपको पता होने चाहिए कि किन किन से हम ये गॉड एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन एक और बेस्ट यहाँ पर हमने लाइन बताई थी, बेस्ट पॉइंट, वो है पश्मीना शॉल। तो पश्मीना शॉल जो है वूवन शॉल है, इनटू फाइन शॉल्स जो है हमारे जनरली वैसा ही शॉल है जो कि जम्मू कश्मीर में होता है, मिलता है। ठीक है, और जो कि जो कश्मीरी गोट होते हैं उनके फाइन सॉफ्ट हेयर से ये वूवन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। देन नेक्स्ट जो हमारा है इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, हम नेक्स्ट लाइन में हम बात करेंगे फ्रॉम फाइबर टू वूल। फाइबर टू वूल ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, फॉर ऑब्टेनिंग वूल sheep आर reared, their hair is cut and processed into wool. Let us learn about this process. अब देखिए यहाँ पर जो है ऑब्टेन करते हैं वूल को सिप से, इस वजह से हम जो है सिप को क्या करेंगे, रेयर्ड करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, है ना। तो देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस इनटू वूल, और उनके हेयर को जो है हम कट करते हैं एंड प्रोसेस इनटू वूल में हम उन्हें पॉज करते हैं। ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। तो ठीक है, तो ये जो इसकी जो प्रोसेस है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, आप लोग बस इतना ही याद रखें, वूल कौन कौन से एनिमल है जिनसे हम ऑब्टेन करते हैं, और दैट एनिमल आर वेयर दे फाउंड, मतलब उनके जो फाउंडेड एरियाज हैं उनके बारे में आप लर्न करें और उन्हें समझें। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास ओवर करते हैं, इसके आगे जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।